Hello everyone, welcome to DBSK Intermediate College. Today we will learn English Prose Chapter 1 A Girl with a Basket, which is written by William C. Douglas. In essay A Girl with a Basket, William C. Douglas, which is written by. In previous videos, we learned about some passage, and today we will know from at one station to they had seen. कहने का तात्पर्य है कि आज हम इस वीडियो में फ्रॉम एट वन स्टेशन से लेकर टू दे हैड सीन, इसके दरमियान जितने भी कंटेंट हैं उन्हीं के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे. मतलब अ गर्ल विद अ बास्केट की आगे की स्टोरी क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ गर्ल विद अ बास्केट. एज यू नो, विलियम सी डगलस was going to Ranikhet, and at every station he talked to the people and walked there to know the actual condition of India. Further, William C. Douglas says that at one station I could not do as I could not talk to the people at one station. What is the reason behind it? This is the topic which we are going to know in the next part, from at one station to they had seen. Let's start. At one station my routine of talking with the people was interrupted. At one station my routine of talking with the people at one station हमारे काफ़ी तेज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से पेज उड़ जा रहे हैं. बहरहाल, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड. विलियम सी डगलस सेज दैट एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड. इट मीन्स दैट विलियम सी डगलस stepped down at every station, walked there and talked to the people, but at one station he could not do as. स्टेशनों पर लोगों से बात करने का जो मेरा सिलसिला था वो बाधित हो गया. इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधित होना. सो वी कैन से he could not do as. That is why William C. Douglas talked to the people at railway station to know the actual condition of India. But at one station he could not do as. It means he could not talk to the people to know the actual condition of India. And here he describes the miserable, the pitiable condition of refugee people and his sons and daughters. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. As soon as William C. Douglas got down at the railway station, a group of young refugee children gathered around him. And those refugee children were selling baskets at railway station. When they all saw the writer, they gathered around him, and all of them held hand women basket and fans in their hand. All those baskets and fans were made of reeds, and these things were made in simple design and pattern.
All of them held their basket and fans high for writer and shouted the word Hindi, but writer failed to understand the word Hindi. That is why he did not follow Hindi. But the writer could not fail to understand their desire. He could understand their desire very well. And finally, he bought many baskets, fans, whatever else which were selling by the children pupil, which were selling by the children of refugee people. At one station, my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का जो मेरा सिलसिला था वो बाधित हो गया. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. जैसे जैसे मैं एक स्टेशन पर जैसे ही उतरा, लड़कों के एक समूह ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया. They were selling baskets. बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे. हैंड वुमेन रीड बास्केट विथ सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न. वो टोकरियाँ साधारण तौर तरीके नमूने डिज़ाइन पर बनाई गई थीं. They held the basket high, shouting words. I did not know They held the basket high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. I did not know the words which were shouting by the children. लेखक ये नहीं जानता था कि वे शब्द क्या बोल रहे हैं, किंतु उनकी इच्छाओं को भली भांति समझ रहे थे. And all of them wanted to him to purchase their wares. और सभी बच्चे चाहते थे कि लेखक हमारे सामानों को खरीद लें. And further, William C. Douglas describes the condition of refugee people. What is the miseries of refugees people in India? How they earn money for living in India. These were refugee children when partition between India and Pakistan was around. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. In these lines, the writer William C. Douglas described the miserable condition of refugee children and his parents and their parents, and how they earn money for living. वो लोग जिंदा रहने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कैसे धन इकट्ठा करते थे, और ये लोग कौन थे, ये बच्चे कौन थे जो टोकरियाँ बेच रहे थे, उन्हीं के बारे में आगे चर्चा है. These were refugee children. The children who were selling basket on railway platform. These were refugee children who came to India from Pakistan during partition. These were refugee children. ये शरणार्थी बच्चे थे जो प्लेटफार्म पर, रेलवे प्लेटफार्म पर टोकरियाँ बेच रहे थे. When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे की घोषणा हुई, hundreds of thousands of people, it means लाखों लोगों ने pulled up their routes, अपने रास्ते बदले, and changed their residences, अपने निवास स्थान को बदल दिया. Or we can say hundreds of thousands people give up their residences, their village, their properties, their relation, and came to India. लाखों लोगों ने अपने रास्ते बदले, अपने निवास स्थान को बदला और भारत आ गए. 9 million people left Pakistan and came to India. 9 million people left Pakistan and
केम टू इंडिया, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आ गए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई 9 मिलियन पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान ड्यू टू रिलीजियस फैंटेसिज्म, ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, धार्मिक उन्माद के कारण 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आ गए। धार्मिक कट्टरता के कारण 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आ गए। एंड दीज वे रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। They were poor people to start with, they were poorer as they began their long trek. Their journey was too long and finally they could carry only a small amount food and a few belongings. जो कुछ वो अपने साथ लेकर चल सके, थोड़ा सा उसमें भोजन था, कुछ ज़रूरत की वस्तुएं थीं और लंबी दूरी होने के कारण उनका ऑल दी थिंग्स व्हिच कुड दे कैरी विद देम वाज ओवर। जो कुछ वो अपने साथ लेके चल सके, थोड़े ही दिनों बाद सब कुछ समाप्त हो गया। पाकिस्तान से भारत आने में आप अपने साथ कितना सामान लेके आ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो इस बात को। थोड़ा सा ज़रूरत की वस्तुएं उनके पास थी और कुछ खाने पीने की वस्तुएं थी, लेकिन एक लंबी दूरी होने के कारण उनका जो सामान था सब समाप्त हो गया। आगे इस चीज़ को विलियम सी डगलस मेंशन किए हुए हैं। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वेयर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, or all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. We can say in other words, due to long journey, their small amount of food was over, and this is reason they began to fall on the wayside, and where they fall they die. जहाँ वे गिरे वहीं पर ख़त्म हो गए, अर्थात इस दुनिया से चले गए। ड्यू टू वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी की वजह से वे लोग जब अपनी when they start their journey again, they began to fall on the wayside due to weakness of hunger, and where they फेल दे डाई, जहाँ पर वो गिरे वहीं पे समाप्त हो गए। एंड वन थिंग्स मोर, दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट, द रिफ्यूजीज पीपल वाज वेरी पुअर टू स्टार्ट, they were already poor in Pakistan and occupied a long trek. They became more poorer. This is the reason they could not carry a big amount of food and other belongings things. And finally all the foods and belongings was over, and when they began their journey again, they began to fall on the wayside, and where they fell down they die. और जहाँ वे लोग गिरे वहीं पर समाप्त हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ वो अपने साथ लेके चल सके, थोड़ा सा भोजन और कुछ ज़रूरत की वस्तुएं, किंतु उनका जल्द ही खाना पीना, इस तरह की जो वस्तुएं थी समाप्त हो गई। और उन्होंने जब अपनी यात्रा दोबारा प्रारंभ की तो भूख की कमजोरी की वजह से, वीकनेस ऑफ हंगर, वो रोड के किनारे गिरने लगे और जहाँ पर गिरे वहीं पे समाप्त हो गए, क्योंकि ये लोग पहले से ही गरीब थे और अपनी लंबी यात्रा के कारण और अधिक गरीब होते चले गए। एंड फाइनली एनीवे
दे रीच इंडिया, वे भारत पहुँचे। हियर विलियम सी डगलस वांट टू शो द क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड situation of refugees on their track. In the next line, William C. Douglas says that the children selling basket were sons and daughters of these refugees. The children who were selling basket on railway platform were sons and daughters of these refugees. जो बच्चे रेलवे स्टेशनों पर टोकरियां बेच रहे थे, इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे, बेटे और बेटियां थे। द चिल्ड्रेन हु वेर सेलिंग बास्केट ऑन रेलवे प्लेटफार्म वाज सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। ये इन शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियां थे हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947 व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। As you know, I have told you before, 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the religious fanaticism. And William C. Douglas here describes how they earn money from basket and fans. The children selling basket were sons and daughters of these refugees. They are their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in market already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The average unskilled laborer make 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese, no tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week, yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. Here William C. Douglas describes how they earn money from those people who is already poorer. And further he says that the children selling basket were sons and daughters of these refugees. जो बच्चे रेलवे स्टेशनों पर टोकरियां बेच रहे थे, इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। They are their parents. बच्चे, उनके माता पिता और रिलेटिव्स, उनके सगे संबंधी had gathered in the cities, शहरों में इकट्ठा हो गए थे। The refugees who came to India, driven by the religious fanaticism of Pakistan, they had been gathered in the cities of India with their parents, their relatives, and trying to earn money by selling baskets at railway platform. Setting up stalls, setting up small shop, छोटी छोटी दुकानें लगा करके, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुएं बना करके, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, पहले से ही भीड़ से भरे हुए बाजार में जीविकोपार्जन या रोजी रोटी कमाने की चेष्टा कर रहे थे। बाय सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस इन मार्केट व्हिच वाज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, they were trying to make money for living in already overcrowded market by manufacturing simple articles, setting up small shops, छोटी छोटी दुकानें लगा करके, साधारण वस्तुएं बना करके, लाइक बास्केट, फैंस एटस्ट्रा,
इस तरह की छोटी छोटी वस्तुएं, टोकरी और पंखों की तरह छोटी छोटी वस्तुएं बना करके, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स विच मीन्स साधारण वस्तुएं बना करके वे लोग रोजी रोटी कमाने का प्रयास कर रहे थे, रोजी रोटी कमाने की चेष्टा कर रहे थे। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. Here William C. Douglas described the house of the refugees people. They lived in cloth and grass sheds that lined the street. वे कपड़े और घास फूस के बने हुए घरों में रहते थे, जिनकी पंक्तियां अर्थात जिन झोपड़ियों की पंक्तियां गलियों में लगी हुई थी। जिन घरों की कपड़े और घास फूस के बने हुए घरों में वे रहते थे, छायादार घरों में रहते थे, कपड़े और घास फूस के बने हुए छायादार स्टडी प्लेसेज which was made of cloth and grass they have lived, that lined in the street. One could see that line in the street. कोई भी व्यक्ति देख सकता था। One could see the line of those shady houses which were made of grass and cloth in the street. कोई भी व्यक्ति उन कपड़े और घास के बने हुए मकानों को, उन छायादार मकानों को देख सकता था जिनकी पंक्तियां गलियों में लगी हुई थीं। The peasants among these refugees, the peasant which means farmer, the peasants among these refugees, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, had been accustomed to little all their lives, had been accustomed to little all their lives. इन शरणार्थियों में the peasants among these refugees, इन शरणार्थियों में जो किसान थे थोड़े में ही गुजारा करने के आदी थे। The farmer among the refugees who came to India driven by the religious fantasies, they had been habited in a small amount to survive their whole life, or we can say they had been accustomed to survive their life in a small amount. इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे अपने थोड़े से ही गुजारा करने के आदी थे, अर्थात किसानों का थोड़े में ही गुजारा हो जाता था और इस चीज़ के वे आदी थे, अर्थात वे अपना संपूर्ण जीवन बहुत थोड़े में ही गुजार लेने के आदी थे। इन शरणार्थियों में जो किसान आए थे भारत से, पाकिस्तान से भारत, उन किसानों की हालत ये थी कि वे अपने थोड़े से ही गुजारा करने के आदी थे, अर्थात बहुत कम ही पैसे में वे अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। इसका भी कारण विलियम सी डगलस आगे बताते हैं। क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 a ईयर, क्योंकि एक खेतिहर परिवार की वार्षिक आय $100 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होती थी। इन 1947 व्हाई द क्वेश्चन इज रेज्ड, एक सवाल उठता है कि व्हाई द पीजेंट हैड अकस्टम्ड ऑल देयर लाइव्स इन अ लिटिल, कि किसान थोड़े में गुजारा करने का आदी क्यों होता है। उसका कारण ये है दैट इज व्हाई द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड $100 ऑफ अ ईयर, क्योंकि एक खेतिहर परिवार की, एक कृषि कार्य करने वाले परिवार की वार्षिक आय $100 से अधिक नहीं होती थी। दिस इज द रीजन दे हैड बीन अकस्टम्ड टू सर्वाइव देयर लाइफ इन अ स्मॉल अमाउंट। यही कारण था कि किसान थोड़े में गुजारा करने का आदी था, क्योंकि उनकी जो सालाना कमाई थी वो $100 से भी अधिक नहीं होती थी। एंड इन 1947 $1 इज इक्वल टू ₹1। $1 के बराबर था। तो इसका मतलब यही है कि एक खेतिहर परिवार की जो वार्षिक आय थी ₹100 थी। तो ₹100 कमाने वाला व्यक्ति, किसान परिवार, तो उसके लिए तो ये मजबूरी है कि वो
थोड़े में ही गुजारा करने का आदी बन जाए। एनीवे, एंड फर्दर द राइटर डिस्क्राइब्स द मेकिंग मनी ऑफ एन अनस्किल्ड लेबर, कि एक अकुशल मजदूर की कमाई क्या थी। The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. एक अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमा पाता था और $2 से कम एक सप्ताह। एक अकुशल मजदूर अनस्किल्ड लेबर मेक 30 सेंट a day, मेक 30 cents a day। एक अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता था और अथवा लेस देन $2 a week, या एक सप्ताह में $2 से कम। एक अकुशल मजदूर की जो कमाई थी इन 1947 when partition between India and Pakistan was decreed, you know, the earning money of an unskilled labor was 30 cents a day or less than $2 a week, less than $2 a week, या $2 से कम प्रति सप्ताह। कहने का तात्पर्य है, इट मीन्स दैट इन हिंदी इफ वी कैन से कि एक अकुशल मजदूर, यू नो अबाउट अनस्किल्ड लेबर, जिसके पास कोई स्किल ना हो उससे कोई भी काम करवा लिया जाए। जैसे किसी कार्य को करने के लिए किसी दक्षता की ज़रूरत ना पड़े, जैसे सपोज दैट गड्ढे खोदने हैं, तो गड्ढे खोदने के लिए जाहिर सी बात है कि उसको एक अकुशल मजदूर भी कर सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी कुशलता की ज़रूरत है नहीं, ना तो बहुत भारी भरकम ज्ञान की ज़रूरत है। तो इस तरह के जो मजदूर होते थे एक अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमा पाता था या $2 से कम प्रति सप्ताह। And the writer further says that about their meal, उनके भोजन के बारे में बताते हैं। There is one meal a day, उनके एक दिन के भोजन में। The meal of refugees people of a day, शरणार्थियों के एक दिन के भोजन में an onion, एक प्याज, a piece of bread, रोटी का एक टुकड़ा, a bowl of pulse, एक कटोरी दाल, with milk, दूध के साथ, perhaps a bit of goat cheese, और शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शरणार्थियों की एक दिन के भोजन में एक प्याज, एक कटोरी दाल दूध के साथ, a piece of bread, रोटी का एक टुकड़ा, शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर, ये उनके एक दिन के भोजन में सारी चीज़ें शामिल होती थीं। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, चाय की कोई बात नहीं, कॉफ़ी की कोई बात नहीं, नो फैट, वसा की कोई बात नहीं, वसा का मतलब घी, नो स्वीट्स, नो मीट, मिठाई की कोई बात नहीं, अर्थात मीठा का कोई जिक्र ही नहीं, मीट का कोई, मांस का कोई जिक्र ही नहीं, ये सारी चीज़ें उनके भोजन में नहीं होती थी। मतलब दियर मील वाज फुल विथ वन एन, मतलब कहने का तात्पर्य ये है एन ओनियन, उनके भोजन में एन ओनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गॉट चीज़, बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर, ये सारी चीज़ें उनके भोजन में सम्मिलित रहती थी। नो टी, नो कॉफ़ी, नो स्वीट्स, नो फैट, नो मीट, और ये सारी चीज़ें उनके भोजन में नहीं रहती थी। $100 a year is not $2 a week, कि $100, $100 प्रति वर्ष के हिसाब से एक सप्ताह का $2 भी नहीं पड़ता था। कि यदि कोई व्यक्ति एक साल में $100 कमा लेता है तो एक सप्ताह में उसका $2 भी नहीं पड़ता था, अर्थात $2 से कम पड़ता था।
Yet even फिर भी that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. फिर भी ऐसे लोगों को टोकरियाँ बेचना, उनसे पैसे कमाना कितना कठिन था, जो लोग इतने गरीब थे कि टोकरियाँ नहीं खरीद सकते थे। ऐसे लोगों को टोकरियाँ बेचकर या फैंस बेचकर पैसे कमाना कितना कठिन था। कहने का तात्पर्य है, जब एक व्यक्ति की जो एनुअल इनकम है $100 ऑफ अ ईयर, तो जाहिर सी बात है कि $2 से भी कम है प्रति सप्ताह। तो ऐसे लोगों को टोकरियाँ बेचकर पैसे कमा पाना कितना कठिन था, जो इतने गरीब हैं कि इन टोकरियों को नहीं खरीद सकते थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. और निस्संदेह यही कारण था कि ये शरारती बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े। डिसेंडेड्स का मतलब होता है उतरना, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी। तो यही वो कारण था कि बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट गए। दैट इज वाई आई एन अमेरिकन, क्योंकि मैं क्या था, अमेरिका का एक निवासी था। वाज डाउटलेस, निसंदेह द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, निसंदेह उनके द्वारा अब तक का देखा गया सबसे अच्छा खरीदार था। कारण क्या था कि मैं अमेरिका का एक निवासी था। आई एम एन अमेरिकन, आई वाज एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था। एंड देयर वाज नो डाउट, निसंदेह कोई संदेह नहीं था। दे हैड सीन स्टिल, अभी तक जो कुछ उन्होंने देखा था, दे हैड सीन टिल, अभी तक उन्होंने जो कुछ भी देखा था। द राइटर वाज द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, लेखक उनके लिए एक अच्छा खरीदार थे। अर्थात अभी तक जितने भी खरीदारों को बच्चों ने देखा था, उनमें से लेखक सबसे अच्छा खरीदार था। एंड दिस इज द रीजन द राइटर स्टेप डाउन एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन। दे हैड गैदर्ड हिम एंड फाइनली they shouted about their wares and passed away one by one. They held their basket in high for writer, so that they bought their baskets and fan, so that the writer bought their खरीद ले। Or we can say the writer could buy the fans and the baskets of those refugee children, ताकि लेखक उन शरारतियों बच्चे की टोकरियों को, फैनों को खरीद सके। That is why they had not seen such a promising market like writer, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं देखा था लेखक से अच्छा खरीदार। तो यही वो कारण था, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। इन दिस वे टुडेज टॉपिक इज ओवर एंड द रिमेन्स पार्ट ऑफ द A Girl with a Basket of the chapter A Girl with a Basket will be discussed in next video. Thanks.